Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss lecture number 14 and that is differential scanning calorimetry. Differential scanning calorimetry, which is denoted by DSC. Differential scanning calorimetry means the measurement of the change of the difference in the heat flow rate to the sample and to a reference material while they are subjected to a controlled temperature program. Yeah, this is the definition of differential scanning calorimetry कि इसमें हम heat flow, the change in heat flow between the sample and reference इसको मेजर करती है या मॉनिटर करती है अगेंस्ट टेम्परेचर ऑफ द सैम्पल. तो ये थोड़ा सा दूसरी टेक्निक जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस से थोड़ा सा डिफरेंट है. उसमें हम द चेंज इन टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं, इसमें हम द चेंज इन हीट फ्लो जो है उसको मेजर कर लेते हैं. So this is the basic definition of differential scanning calorimetry. It is important to understand that DSC measures the change of a property, namely of a heat flow rate difference, which normally is released due to an alteration of the sample temperature. कि अगर हम सैम्पल टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं तो हीट फ्लो जो है उसमें डिफरेंस आ जाता है, तो उस डिफरेंस को हम फिर कंपेयर कर लेते हैं विद रेफरेंस मटेरियल और उसको हम मॉनिटर करते हैं. व्हेन देयर इज़ नो अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन का मतलब चेंजेस ऑफ द सैम्पल टेम्परेचर, नो चेंज ऑफ ए हीट फ्लो रेट डिफरेंस कैन बी मेजर्ड. अगर कोई चेंज नहीं आ रहा सैम्पल टेम्परेचर में तो कोई चेंज इन फ्लो रेट जो है वो नहीं होगा. दैट मीन्स ए डिस्टिंक्ट टेम्परेचर प्रोग्राम आर इन जनरल ए मोड ऑफ ऑपरेशन इज ऑलवेज पार्ट ऑफ ए DSC measurement. In the case of a thermally activated reaction or transition, that for example by a controlled stepwise change from one constant temperature to another, the sample's temperature undergoes an alteration by internal processes and cause the DSC signal. इसका ये मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं और सैम्पल में कोई चेंज आ जाता है तो उस चेंज की वजह से वो हीट फ्लो जो है वो चेंज हो जाती है और वो सिग्नल के तौर पे हमें फिर हासिल होता है. इट शुड इवन बी मेंशन्ड दैट हीट ओनली फ्लोज इफ देयर इज़ ए टेम्परेचर डिफरेंस प्रेजेंट. अगर टेम्परेचर डिफरेंस प्रेजेंट है तब हीट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा. इन अदर वर्ड ए नॉन ज़ीरो हीट फ्लो रेट डिफरेंस implies always a temperature difference between the sample and the reference and their surrounding, and a change of the heat flow rate difference implies a change of the temperature as well. कि अगर यानी जो नॉन ज़ीरो हीट फ्लो है ये तब ही होगा जब हमारे पास सैम्पल और रेफरेंस दोनों का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो, वो सेम ना हो. अगर सेम है तो फिर देयर विल बी नो हीट फ्लो. अब ये DSC की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि DTA से डिफरेंट है, यानी DTA से इट इज़ सुपेरियर. Differential scanning calorimetry. Differential scanning calorimetry is the most often used thermal analysis method
primarily because of its speed, simplicity, availability. तो holders in the instrument heater heaters either ramp the temperature at a specified rate or hold the DEC at a given temperature कि या तो हम हीट को इंक्रीज कर लेते हैं कॉन्स्टेंटली किस रेट से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट से या हम उसको एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर से वो दे देते हैं इंस्ट्रूमेंट को The instrument measures the difference in the heat flow between the sample and the reference. अब the basic difference between this DSC and DTA कि इन दोनों के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन DSC and DTA is that DSC is a calorimetric method in which differences in energy are measured. In contrast, in DTA, difference in temperature are recorded. कि उसमें the difference in temperature, the heat या energy को measure किया जाता है और DTA में the change in temperature या the difference in temperature को measure किया जाता है. The temperature programs for the two methods are similar. बाकी उनकी जो टेम्परेचर प्रोग्राम है इंक्रीज है डिक्रीज है वो सेम है DSC इज कंसिडर्ड टू बी ए क्वांटिटेटिव टेक्निक इन कंट्रास्ट टू DTA जिसमें हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था कि DTA इज़ कॉमनली यूज फॉर क्वालिटेटिव पर्पसेस या क्वालिटेटिव एनालिसिस जबकि DSC को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए कॉमनली यूज़ करते हैं अब इसके इंस्ट्रूमेंटेशन DSC के कौन कौन से है तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ DSC इंस्ट्रूमेंट्स पावर कंपेंसेटेड DSC हीट फ्लक्स DSC मॉड्यूलेटेड DSC तो दीज आर the instrumentation of the DSC one is the power compensated heat flux and modulated तो आज के लेक्चर में हम पावर कंपेंसेटेड DSC को पढ़ेंगे DSC typical thermogram each produces a plot of power or heat flow versus temperature called a thermogram either heat या फ्लो ऑफ हीट या पावर जो है उसको मेजर यानी उसको लिया जाता है और इधर टेम्परेचर ऑफ द सैंपल जो है वो लिया जाता है तो बाकी ये उसका यानी इस टेक्निक का जो थर्मोग्राम है दैट इज़ आलमोस्ट सिमिलर टू डेट ऑफ द डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस जो हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इसमें एक्सोथर्मिक ये एंडोथर्मिक तो ये जो है वही उसी तरह थर्मोग्राम है और ये ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर अब पावर कंपेंसेटेड DSC इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे इन पावर कंपेंसेटेड DSC द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल एंड रेफरेंस आर केप्ट इक्वल टू ईच अदर while both temperature are increase or decrease linearly कि फर्स्ट हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर सैंपल और रेफरेंस का इक्वलाइज करेंगे फिर उसके बाद उसको कॉन्स्टेंटली इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे इसका मतलब ये है कि अगर हम सैंपल और रेफरेंस का टेम्परेचर सपोज 100 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं दोनों का फिर उसके बाद इन दोनों को कॉन्स्टेंटली हीट करते हैं और द चेंज इन हीट फ्लो पर हम उसको मेजर कर लेते हैं द पावर नीडेड टू मेंटेन द सैंपल टेम्परेचर इक्वल टू द रेफरेंस टेम्परेचर इज मेजर्ड
अब फिर उसके बाद जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं ऑफ द सैंपल इन द रेफरेंस, अगर सैंपल में कोई एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो जाहिर बात है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से सैंपल का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और एंडोथर्मिक की वजह से वो डिक्रीज़ होगा। अगर एंडोथर्मिक ले ले जो सैंपल टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, फिर हम इसको अपनी तरफ से जो है वो इतना हीट दे देते हैं ताकि वो रेफरेंस के बराबर हो जाए, एंड दैट हीट इज़ देन मेजर्ड। अगर वो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फिर उसको कूल कर लेते हैं या उसके टेम्परेचर को कम कर लेते हैं और डेट डिक्रीज इन हीट फ्लो जो है उसको हम मेजर कर लेते हैं। A diagram of a power compensated DSC sample holder and heating unit is shown in figure 31.11। ये पावर कंपनसेटेड DEC का डायग्राम है, ये सैंपल और ये रेफरेंस कंटेनर है। अब ये हीट सिंक है, सैंपल इधर रखा हुआ है, ये हीटर है और साथ जो है इधर प्लैटिनम रेजिस्टेंस जो है डेट इज़ यूज फॉर द सेंसिंग ऑफ द टेम्परेचर, हम इनके टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। ये रेफरेंस है, रेफरेंस कंटेनर, ये बेसिकली टोटल इज द फर्नेस और दीज आर दिन बोथ आर कनेक्टेड विद द हीट सिंक। जो हीट प्रोड्यूस हुआ है उसको फिर डिसिपेट करने के लिए ये हीट सिंक लगाया जाता है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें दो हीटर लगे हुए हैं, एक सैंपल की हीटिंग के लिए, दूसरा रेफरेंस के हीटिंग के लिए। टू इंडिपेंडेंट हीटिंग यूनिट्स आर एम्प्लॉयड, यानी दो इंडिपेंडेंट हीटिंग यूनिट्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। These heating units are quite small, allowing for rapid rate of heating, cooling and equilibration। ये जो हीटिंग यूनिट है वो छोटे होते हैं ताकि हमारे पास रैपिड हीटिंग हो और फिर रैपिड कूलिंग भी हो और उसको इक्वलाइज भी किया जा सकता है, जल्दी से इक्वलाइज हो जाता है अगर हमारे पास हीटिंग यूनिट स्मॉल हो। The heating units are embedded in a large temperature controlled heat sink, फिर उसको यानी दंसाया जाता है, जिस तरह आप देख सकते हैं इसको embedded किया जाता है। The sample and the reference holders have platinum resistance thermometers to continuously monitor the temperature of the material। जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर या हम थर्मोकपल यूज़ करते हैं ताकि सैंपल और रेफरेंस का टेम्परेचर मेजर किया जाए। बोथ सैंपल एंड रेफरेंस आर मेंटेन एट द प्रोग्राम टेम्परेचर बाय अप्लाइंग पावर टू द सैंपल एंड रेफरेंस हीटर। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि पहले दोनों मटेरियल का सैंपल और रेफरेंस का टेम्परेचर इक्वलाइज किया जाता है। द इंस्ट्रूमेंट records the power difference needed to maintain the sample and the reference at the same temperatures as a function of the program temperature। जिस तरह मैंने आपको बताया अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, अगर एंडोथर्मिक है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर लेते हैं और उस द डिक्रीज़ इन टेम्परेचर और इंक्रीज़ इन टेम्परेचर को फिर हम मेजर कर लेते हैं विद program temperature। Power compensated DEC has lower sensitivity than that heat flux DEC, but its response time is more rapid। कि ये इतना सेंसिटिव, इसकी सेंसिटिविटी लेस है एज कम्पेयर टू द हीट फ्लक्स DEC, लेकिन उसका रिस्पॉन्स टाइम रैपिड है। दिस मेक्स power compensated DSC well suited for kinetic studies in which fast equilibration to new temperature setting are needed।
तो फिर इसको काइनेटिक स्टडी के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पावर कंपेंसेटेड DAC इज़ आल्सो कैपेबल ऑफ हायर रेजोल्यूशन देन हीट फ्लक्स DAC कि पावर कंपेंसेटेड DAC का जो रेजोल्यूशन है वो दैट इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू द हीट फ्लक्स DAC। तो ये जो है पावर कंपेंसेटेड DAC की इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में था। पहले हमने DAC को डिफ़ाइन किया, DAC क्या है और ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द DTA से, उसको भी हमने एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद उसके इंस्ट्रूमेंटेशन को कि इसके इंस्ट्रूमेंटेशन जो है देयर आर 3 इंस्ट्रूमेंटेशन, वन इज़ पावर कंपेंसेटेड हीट फ्लक्स DAC और द थर्ड वन इज़ मॉड्यूलेटेड DAC। फिर हमने एक्सप्लेन किया है कि पावर कंपेंसेटेड DAC क्या है और उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन जो है उसको हमने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी 2 टेक्निक जो है हीट फ्लक्स और मॉड्यूलेटेड DAC को एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस।